So once again, welcome in the optical communication report lecture series. So in the previous lecture, we started with the crash course lectures, and we have completed the 3 lectures of the crash course. In the first lecture, we completed the chapter number 1. In the second lecture, we completed the chapter number 2 and 5. In the third lecture, we started with the chapter number 3, and partially we completed the majority part of numerical things. तो yesterday के lecture में हमने ये सारे points cover किए थे. This is first sum, second sum, थर्ड सम, एक पीवाईक्यू भी सॉल्व किया था, देन एपीडी का एक सम भी सॉल्व किया था. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू. तो आज हम लोग 2 टाइप के सम सॉल्व करेंगे. अंटिल वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 सो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट विद द सम्स बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 3 का 3 फोटोडायोड का पार्ट. लेट्स स्टार्ट विद so again these sums based on photodiode, sums based on in photodiode. This is sum number 1. So let's write down the question. In photodiode, on average generates 1 electron hole pair for 3 incident photons at a wavelength of 0.8 micrometer. Assuming all the electrons are collected, calculate first point quantum efficiency of the device. Second, its maximum possible band gap energy. And last one is the mean output photocurrent when the received optical power is 10⁻⁻⁷ watt. ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन दिया. अब इसमें अपने को क्या क्या गिवन दिया है वो हाईलाइट करते हैं. सो व्हाट आर द गिवन पॉइंट्स. फर्स्ट मुझे उसने बोला है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने को 3 इंसिडेंट फोटॉन्स लगाए. To create 1 electron hole pair, we require 3 incident photons. 3 input, 1 is output. Their wavelength is given, that is 0.8 micrometer. What we need to find out? We need to find out quantum efficiency, this is possible band gap energy, and what is the minimum output photocurrent. The optical power is 10⁻⁷ watt. So let's start. So what is the given? So let's write down the given points. तो मुझे given दिया है lambda, which is equal to 0.8 micrometer, which is always 0.8 into 10⁻⁶ meter. मुझे दिया है output power, which is a 10⁻⁷ watt. So let's start with the solution. Now to find out the quantum efficiency, which is the first calculate जो अपने को करना है, उसके लिए you need to find the
efficiency का formula. So this quantum efficiency is denoted by eta, which is equal to number of newly generated charge carriers divided by number of incident photons. कितने चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुए 1. कितने इंसिडेंट फोटोन है 1/3, which is equal to 0.33. So अगर मैंने परसेंटेज में कैलकुलेट किया 0.33 into 100, that indicate 33%. So 1/3 अगर मैंने कैलकुलेट डाला, I think answer is 33. So 1/3 is 0.3333. अगर मैंने इसको सॉल्व किया so answer will be 0.3333. It will be 33.33%. Perfect. So that's all. What parameter हो गया? That is the quantum efficiency. Again देखते हैं. I can say maximum possible band gap energy. So maximum possible band gap energy. So it is denoted by Eg. Formula of this one is energy is equal to h nu. The formula of it. Energy is equal to Planck constant into the frequency. This nu indicate frequency. इसको अगर मैंने modified किया, see velocity is equal to frequency into lambda. Frequency is equal to velocity upon lambda. Here the velocity is the speed of light and lambda. ऐसे बनेगा. Again इसको देखते क्या बोला मैंने? Energy is equal to h nu. Standard formula physics में. Nu is a frequency. Velocity is equal to frequency into lambda. तो frequency क्या बना? Velocity upon lambda. बराबर? Velocity is represented by c. तो nu के जगह पे मतलब frequency की जगह पे क्या लिख सकते हैं? c by lambda. So let's make it to c upon lambda. तो फॉर्मूला क्या बना? Eg is equal to hc upon lambda. And this lambda is not a normal lambda. तो हमने क्या नोटेशन दिया था? Lambda c. क्या बोला है? That is the incident photon का वेवलेंथ दिया उसने. This is lambda c. H कितना है? It is 6.63 into 10 raised to minus 34. C is 3 into 10 raised to 8 meter per second. And lambda is how much given? That is 0.8 into 10 raised to minus 6. तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 6.63 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 and divided by 0.8 into 10 raised to minus 6. कैलसी पे सॉल्व किया तो विल गेट द आंसर एज 2.486 10 raised to minus 90. This will be जूल. लेकिन अभी मुझे जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. That is the method. To convert joule to electron volt by dividing, याद रखना है तो हो गया आपका इंजीनियरिंग याद रखना है. So by dividing E by 1.6 into 10 raised to minus 90. तो इससे डिवाइड करो तो आंसर को डिवाइड करो. दैट इज 2.486 into 10 raised to minus 90. अगर मैंने इसको डिवाइड किया 1.6 10 raised to minus 90, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. मुझे क्या मिलेगा? तो 2.48625 डिवाइड बाय 1.6 अगर मैंने किया मुझे आंसर मिलने वाला है 1.5539 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये मुझे मिलेगा Eg. जूल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों में हमने देखा. ठीक है. सेकंड पैरामीटर भी यहाँ पे सॉल्व हो गया. जाते हैं थर्ड के ऊपर. जाते थर्ड के थर्ड के ऊपर. थर्ड वन. थर्ड वन इज दी मिनिमम फोटो करंट. मिनिमम क्या बोला है?
मेन आउटपुट फोटो करंट ऐसे बोला. So this is the mean output photo current. ऐसे बोला which is denoted by IP. हमने पहले भी देखा था. बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्मूला इसलिए लिखा था R इज इक्वल टू इफिशियंसी. R is equal to efficiency Q lambda divided by H into C. बराबर, ये हमने फॉर्मूला देखा था. यहाँ से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज. तो मुझे ईटा कितना है? 0.33. Q is 1.6 10 to minus 90. लैम्डा कितना दिया? दैट इज 0.8 into 10 to minus 6. H is 6.63 10 to minus 34. And is 0.3333 ऐसे लिखो बिकॉज थोड़ा वैल्यू चेंज होगा. कितना आएगा? 0.3333. सी कितना आएगा? 3 into 10 to 8. तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो आर कितना मिलेगा? लेट्स सी. 0.333 into 1.6 into 0.8 divided by 6.63 into 3. कितना आएगा? 0.0214. एंड पावर में कितना आएगा? -90 -6 प्लस 34 -8. कुछ नहीं आएगा. 10⁻1 आएगा. 10⁻1 which is equal to 0.14 एम्पियर बाय वैट. हमने देखा था. ठीक है. अभी इससे मुझे फाइंड आउट करना है. वी ऑल्सो नो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू आईपी अपॉन. यस्टरडे का अपने को याद होगा. आईपी इज इक्वल टू, यस्टरडे का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग. सो इसमें फोटो करंट इज इक्वल टू ऑप्टिकल पावर इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी. बराबर. ये फॉर्मूला कंटिन्यू करते हो. तो आउटपुट फोटो करंट इज आईपी व्हिच इज इक्वल टू पी नॉट इनटू आर. तो आउटपुट पावर कितना दिया है? 10⁻⁷ into R is 0.214 and which is equal to, अगर मैंने इसको सॉल्व किया इट्स अ नॉर्मल ना. मैं इसको लिख सकता हूँ 21.4 into 10⁻⁹. 21.4 नैनो एम्पियर. तो माइक्रो में भी लिख सकते थे हम लोग 0.0214 तक के. अप टू यू. 21.4 नैनो एम्पियर. खत्म. क्वेश्चन खत्म हो गया. सिंपल था. इमीडिएटली जाते सेकंड पेपर. सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. ये सिलिकॉन पिन photodiode has 25 micrometer depletion layer width and carrier velocity 3 into 10⁻⁴ meter per second. Determine the maximum bandwidth. Determine the maximum bandwidth and the corresponding response time for the device. Let's write down the given. तो अभी यहाँ पे क्या क्या दिया देखो. सिलिकॉन पिन फोटोडायोड हैज अ 25 माइक्रोमीटर डिप्लीशन लेयर विड्थ. विड्थ कितना दिया है? दैट इज
25 into 10 raised to minus 6 मीटर. उसके बाद कैरियर वेलोसिटी जैसे VD इज नोन एज VD which is 3 into 10 raised to 4 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम बैंडविड्थ एंड करस्पॉन्डिंग रिस्पांस टाइम. ये दो पैरामीटर फाइंड आउट. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. तो करस्पॉन्डिंग रिस्पांस टाइम जो दिया है ना, दैट इज आल्सो नोन एज, इसको मुझे फाइंड आउट करना है. फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम बैंडविड्थ. तो उसके लिए अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा जैसे ट्रांजिट टाइम. ट्रांजिट टाइम इज डिप्लीशन लेयर विड्थ divided by carrier drift velocity which is equal to W upon VD. ठीक है, W कितना है? 25 into 10 raised to minus 6 divided by velocity कितना है? 3 into 10 raised to 4. तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया 25 तो मैंने यूज किया था. तो ये गलती से इरेज हो गया. मैंने कौन सा बटन प्रेस हुआ, गलती से इरेज हो गया. तो अगेन इसको लिखते हैं. होता है ऐसे. यू शुड बी पेशेंट. अगर आपने कुछ मेहनत की है एंड सडनली वो सब कुछ इरेज हो गया, उससे कुछ आउटपुट मिला नहीं, आज से को बेटे तो कुछ नहीं. तो हरीश वंश बच्चन इनका जो होता है पोएम है ना, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती. तो एक चिट्ठी का, एक एंट का उन्होंने एग्जांपल दिया. वन एंट वांट टू क्लाइंब on a wall or we can say on a mountain, and while climbing that mountain she falls many times. तो एक दो बार ऐसे भी हुआ होगा कि she reach up to the top, suddenly she falls down. That does not indicate कि उसने छोड़ दिया. She again climbed. So, ये तो छोटा एग्जांपल है जो अभी निरेज हुआ मेरे इसमें. लेकिन इससे बहुत सारी चीजें होती है जो लाइफ यू सडनली आपके हाथ से निकल जाता है एंड यू फील वेरी सैड एंड यू बिकम एंग्री. अपने नसीब में नहीं था, अगर नसीब में है तो फिर से मेहनत करते, मैंने कभी मिलेगा. क्या होता है ऐसे. ये क्वेश्चन था. ठीक है, इसमें हमने गिवन भी लिखा था. So what was the given? The given the width which is equal to 25 into 10 raised to minus 6 मीटर एंड अपने को VD दिया था 3 into 10 raised to 8 10 raised to 4 मीटर पर सेकंड. और फॉर दैट यू रिक्वायर फर्स्ट टर्म दैट इज अ ट्रांजिट टाइम. तो वो सबसे पहले ट्रांजिट टाइम निकालना होता है. So what is a transit time? It is denoted by T drift. Transit time is denoted by T drift and the formula is depletion layer width divided by carrier drift velocity. बराबर. इसका मतलब क्या आएगा? W upon VD. So W is how much? 25 into 10 raised to minus 6 divided by 3 into 10 raised to 4. जब मैंने इसको सॉल्व किया, so 25 divided by 3, so 25 divided by 3, 8.33 into 10 raised to minus 10, ऐसे कुछ तो आया. बराबर. तो अगर मैंने इसको एक पॉइंट खा लिया 0.833 नैनो सेकंड ऐसे आएगा. तो 10 रेज़ टू माइनस 10 का एक माइनस खा लिया तो 0.8 आगे शिफ्ट होगा, 0.8 होगा एंड देन 10 रेज़ टू माइनस 9 होगा तो नैनो सेकंड. तो दिस इज टी. Now by using T drift, you solve the next one. Maximum bandwidth. देखो सॉल्व करना है which is equal to Bm. That B1 is equal to 1 upon 2 drift.
तो 1/2 pi into 8.33 into 10 raised to minus 10 ऐसे था. उसको सॉल्व करते हैं. So 2 into 5 into 8.33 into 10 raised to minus 10 and उसका रेसिप्रोकल. सो एक 10 raised to minus 10 नहीं डाला, कैंसिल तो भी चलेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. सो 2 pi into 8.33 उसका रेसिप्रोकल. आंसर इज 0.01910 टू 10 raised to minus 10. अगर मैंने अच्छे से लिखा, अच्छा कैसा लिखा, तो प्लस 10 होगा सर, प्लस 10 होगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.91. मैंने 2 से पॉइंट पीछे शिफ्ट किया ना, वो मैंने खाया. 10 raised to 10 का 8 हुआ. दिस इज हर्ट्स बिकॉज दिस इज बैंडविड्थ. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिस्पॉन्स टाइम. सो व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ bm equal to 1 upon bm. 1.91 into 10 raised to 8. चेक करते कितना आएगा. 1.91 का रेसिप्रोकल इट इज 0.5235 10 raised to minus 8. अब एक और यूज किया तो 5.235 10 raised to minus 9. 5.235 नैनो सेकेंड. ये आंसर है. चेक करो. दिस शुड बी आंसर. देखो तो मैच वैसा वैल्यू. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो हमने अब तक सॉल्व किया. जाते थर्ड के ऊपर. P dash N, that is also P. P dash N photodiode has a quantum efficiency of 50%, the wavelength 0.9 micrometer. Calculate first its responsivity and second is the received optical power if the mean photon current is 10 raised to minus 6 ampere. स्टार्ट करते हैं. अभी एफिशिएंसी मुझे कितना दिया है? 50% and that is 50 upon 100, 0.5. उसके बाद IP दिया है, that is photo current 10 raised to minus 6 ampere and lambda दिया है 10 raised to 0.9 to 10 raised to minus 6 मीटर. ये बाकी ये सारे पॉइंट दिए जो फाइंड आउट करना है रिस्पॉन्सिविटी. स्टार्ट करते हैं. So responsivity which is R, इसका फॉर्मूला अपने को पता है, efficiency Q lambda divided by H into C. Efficiency is 0.5, Q is 1.6 10 raised to minus 19, lambda is 0.9 into 10 raised to minus 6 divided by 6.63 into 10 raised to minus 34. This is 3 into 10 raised to 8. Perfect. Just find out the R. How? So just melt down, just put all the values in the calci and just check what are the values. 6.63. So we received 0.03619 and minus 19 minus 6 plus 34 minus 8.
into 10 raised to 1. So this will become 0.3619 ampere/watt. This is responsibility. अब उसके बाद अपने को सॉल्व करना है, दैट इज द रिसीव्ड ऑप्टिकल पावर. तो अपने को पता है दैट इज IP इज इक्वल टू फोटो करंट इज इक्वल टू आउटपुट पावर इनटू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट इज आउटपुट पावर? दैट इज IP अपॉन R. सो IP कितना दिया था? 10⁻⁻6 एंड R कितना दिया? 0.3619. इसको सॉल्व करते हैं. 0.3619 का रेसिप्रोकल लिया 2.763 2.763 10⁻⁻6, it is a 2.763 microwatt. ये आंसर है. ठीक है. तो ये भी डन विद द फोटोडायोड का सम आल्सो. कुछ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. एक समय आपको वो देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो देख के. फोर्थ वन फॉर दिस क्वेश्चन. अ फोटोडायोड, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, आपको मैं आइडिया भी दूंगा. हैज efficiency of 65% when photons of energy 1.5 into 10⁻⁻19 joules are incident upon it. First, at what wavelength is the photodiode operating? And second, it incident optical power required to obtain photo current of 2.5 microampere. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे. इसमें गिवन क्या दिया वो भी आपको बोलता हूँ. तो गिवन, तो यहाँ पे गिवन दिया आपने को एनर्जी इज EG. EG is given 1.5 into 10⁻⁻19 जूल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं, सारा जूल में दिया. इफिशियंसी दिया 65%, दैट इंडिकेट 0.65. IP दिया फोटो करंट 2.5 into 10⁻⁻6 एम. ये सब कुछ दिया. मेरे को करना क्या है, देखो आपको फाइंड आउट करना है वेवलेंथ. ठीक है, देन आपको फाइंड आउट करना है इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर. आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है एंड आपको P नॉट फाइंड आउट करना है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो EG का फॉर्मूला पता है. EG इक्वल टू, हमने सॉल्व भी किया था, H में, विच इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा C. बराबर. तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको EG पता है, आपको H पता है, आपको C पता है, लैम्डा C मिलेगा. वैल्यू पुट करो, आपको लैम्डा C मिलना चाहिए 1.325 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. ऐसे इसके आसपास कुछ मिलना चाहिए. मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन इसके आसपास मिलना चाहिए. देन फाइंड आउट दी R. R का आपको फॉर्मूला पता है, H. R का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज efficiency and Q lambda C lambda HC. आपको इसमें से इफिशियंसी पता है, क्यू पता है, यहाँ से लैम्डा सी मिला है, एच मिलेगा एंड सी भी पता है. ये सब सॉल्व करने के बाद आपको आर कितना मिलेगा? 0.694 एम्पियर बाय वाट. एंड देन दैट फॉर्मूला यू कैन यूज हियर. IP is equal to P naught into R. So P naught is equal to IP upon R. So IP आपको कितना दिया? 2.5 to 10⁻⁻6 एंड R दिया 0.694 जो सॉल्व किया. अब आंसर आना चाहिए 3.6 into 10⁻⁻6 which is 3.6 माइक्रोवेट. ये आंसर आना चाहिए. ठीक, तो ट्राई करो खुद से सॉल्व करो, ये आंसर आना चाहिए. आगे चलते हैं.
So now this sum is based on that is link power budget. एक कंसेप्ट है, मैंने इसका थियरी भी पहले भी देखा था, जैसे लिंक पावर बजट। बेस्ड ऑन लिंक पावर बजट, ये क्वेश्चन दिसंबर 19 के पेपर में है और 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी। कुछ भी नहीं है, लेंदी सम है, समझ कर लो क्या लिख रहे हो आप। स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया अपने को, उसके हिसाब से हम गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं। An analog optical fiber system using laser 3 dBm optical power into air। लेजर का ऑप्टिकल पावर कितना है? 3 dB 3 डेसिबल पर मीटर into the air, ठीक है। A coupling loss of 17.5 dB is present। coupling loss दिया 17.5 dB पर launching power into the fiber। लेंथ ऑफ द फाइबर is 6 किलोमीटर। फाइबर का लेंथ दिया 6 किलोमीटर, तो लॉस कितना दिया? 5 dB पर किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर में पर किलोमीटर 5 dB का लॉस होता है। स्प्लाइस एट एवरी 1.5 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर का वायर है, हर एक 1.5 किलोमीटर के बाद उसको जोड़ा है। मतलब जो 6 किलोमीटर का फाइबर है वो कितने का है? 1.5 किलोमीटर का एक है। तो ऐसे 4 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट किया है ताकि 6 किलोमीटर बने। अगर फिर 1.5 इंटू 4 किया तो 6 बनेगा। विथ 1.1 dB लॉस पर स्प्लाइस। कनेक्टर यूज किया होगा स्प्लाइस का, इसके लिए 1.1 dB स्प्लाइस लॉस हुआ है, तो ऐसे 4 यूज किया होगा, तो 4 इंटू 1.1 लॉस हुआ है। कनेक्टेड लॉस एट रिसीवर इज 0.8 dB। जो रिसीवर के पास लॉस है तो 0.8 dB है। The pin receiver has a sensitivity of -54 dBm, estimated safety margin is 4 dB। तो डिजाइन द लिंक पावर बजट, अपने को पूरा हिस्ट्री इसका लिखना है, डेटा शीट जैसे लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है यहाँ वो लिखते हैं। पहले अपने को पता होना चाहिए ट्रांसमिशन पावर कितना। What is the transmission power here? The transmission power that is a PT is equal to 3 dB, बराबर। ये तो अपने को दिया यार 3 dB। तो इसके बाद दिया कपलिंग लॉस। कपलिंग लॉस उसको डिनोट करते, इसको नोट करते LC से। दैट LC इज गिवन -17.5 dB, बिकॉज लॉस है ना, तो बाद में आपको ये माइनस में लेना पड़ेगा। दिस आर द लॉस फैक्टर, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इन माइनस में। नेक्स्ट ये फाइबर लॉस पर किलोमीटर। लॉस पर किलोमीटर इसको नाम देते हैं LF, बिकॉज फाइबर लॉस है। पर किलोमीटर कितना लॉस हुआ है? 5 dB। तो लेट्स कंसीडर -5 dB पर किलोमीटर, बराबर। उसके बाद दिया फाइबर लेंथ। फाइबर का लेंथ दैट इज L इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। यार ये 4 पैरामीटर दिए, ठीक है, हाईलाइट भी किया कौन कौन से पैरामीटर। उसके बाद अपने को क्या दिया? स्प्लाइस लॉस, स्प्लाइस पर स्प्लाइस। लेट्स कंसीडर LS कितना दिया है? 1.1 dB, बट माइनस में नहीं है बिकॉज लॉस है, यहाँ पे दिया 1.1 dB। उसके बाद क्या दिया? नंबर ऑफ स्प्लाइसेस कितने आएंगे? नंबर ऑफ स्प्लाइसेस, तो उसको नाम देते हैं NS। कैसे पता चलेगा? अपना लेंथ कितनी 6 है, एंड हर एक का कितना लेंथ है? 1.5 किलोमीटर। 6 डिवाइड बाई 1.5 किलोमीटर, तो इसको लगा तो बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्प्लाइसेस बाद में लिखते हैं बिकॉज ये कैलकुलेशन है, गिवन नहीं, इसको बाद में लिखते चलो। उसके बाद कनेक्टर लॉस, तो कनेक्टर लॉस क्या आएगा? LR विच इज इक्वल टू दिस वन। कनेक्टर लॉस LR माइनस 0.8 dB। उसके बाद और क्या गिवन है? सेंसिटिविटी, रिसीवर सेंसिटिविटी। रिसीवर सेंसिटिविटी RS is equal to, this is -54 dB, -54 dB। उसके बाद लिंक मार्जिन, दिस इज सेफ्टी मार्जिन बोला उसने यहाँ पे, इसको सेफ्टी मार्जिन बोलते। सेफ्टी मार्जिन, इसको नाम देते M। इट इज हाउ मच? इट इज 4 dB। डिजायर्ड बोले, एस्टिमेटेड बोले, सो इसको नाम देते डिजायर्ड। दिस आर द गिवन। गिवन पता चला सबको, अभी आगे चलते। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब नाम
पढ़ा ऐसे, जितना दिया था उसको सब रीड आउट के नोटेशन दिए। आगे जाते हैं, देखो बजट एनालिसिस करना है इसका। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्पाइसेस कितना है, दैट इज नंबर ऑफ स्पाइसेस, दैट इज एनएस। क्या आएगा, नंबर ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू फाइबर लेंथ, फाइबर का लेंथ आपके पास कितना है, दैट इज एल, एंड आपको लेंथ पर स्प्लाइस कितना है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा नहीं, दैट इज लेंथ पर स्प्लाइस, और यू कैन से लेंथ ऑफ ईच फाइबर, दैट इज 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये टोटल फाइबर का लेंथ हुआ, टोटल फाइबर लेंथ दैट इज एल 6 किलोमीटर। तो व्हाट विल डू, दैट इज टोटल फाइबर लेंथ डिवाइड बाय फाइबर लेंथ, वी कैन से ईच फाइबर लेंथ 6 किलोमीटर अपने को दिया, एंड दिस इज 1.5, दैट इज 4। नंबर ऑफ स्लाइसेस कितना आएगा, दैट इज 4, या ये भी अपने को पता चला, एनएस, एनएस। So let's find out the first parameter. फर्स्ट पैरामीटर अपने को निकालना है, याद रखना ये पैटर्न से जाना। लॉन्च पावर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय PL, लॉन्च पावर, एंड इट इज PT प्लस LC। व्हाट इज अ PT, वो देखते हैं। PT इज अ ट्रांसमिशन पावर एंड LC इज अ कपलिंग लॉस। लॉन्चिंग और कैसे फाइंड आउट किया, PT प्लस LC, तो कितना दिया, दिस इज 3, एंड ये कितना था, -17.5। कितना आंसर है अपने को, -14.5। यूनिट क्या आएगा, सी, DVA। फर्स्ट समझो, लॉन्च पावर दैट इज अ PL, दैट इज PT प्लस LC, 3 - 17.5 ऐसे आएगा। सेकंड, दैट इज अ फाइबर अटेन्यूएशन, which is denoted by LA। कैसे आएगा, LF into L। What is LF? LF is a fiber loss per kilometer into L। फाइबर लॉस कितना है, दैट इज -5 dB पर किलोमीटर, बराबर, एंड इनटू L, लेंथ कितना है टोटल, 6, कितना आएगा, दैट इज -30। अब यूनिट क्या आएगा, LF का यूनिट है dB पर किलोमीटर, इसका यूनिट है किलोमीटर, तो किलोमीटर एंड किलोमीटर कैंसिल होगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर में, आंसर क्या आएगा, -30 dB। तो ये आपको सब याद रखना, बिकॉज बहुत लेंथी, 10 मार्क का कर दी। This is total splice loss. Total splice loss. This is LS total, and which is equal to LS into NS। हर एक का लॉस कितना है, -1.1, टोटल अपने पास कितना है, 4, तो कितना आएगा, -4.4 dB, बराबर। ये भी थर्ड पता चला। देन फोर्थ वन, देन टोटल पावर लॉस, that is LT, which is LC plus LA plus LS टोटल, ये फॉर्मूला है, प्लस LR। तो व्हाट इज LC, LC क्या है, LC is a coupling loss, then LA, what is LA? LA is a fiber attenuation, बराबर, LS total, so LS total is the total splice loss plus LR, and what is LR? Is the connector loss। Total power loss कितना हुआ, that is LC plus LA plus LS total plus LR, that is -17.5
-30, -4.4, -0.8, बिकॉज ये सब लॉसेस है ना। टोटल लॉस कितना है? दैट इज -52.7 dB लॉस है। Then fifth one is the received power, which is equal to PR, and which is a PL minus LT. So total अपने को कितना मिला था? This is -14.5. कितना लॉस हुआ? -52. So -14.5 -52.7, which is equal to, हाँ, यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है देखो, जो अभी मैंने किया, PT माइनस LT। देखो LT इनिशियली माइनस आ गया है, सो माइनस ऑफ माइनस आएगा। माइनस ऑफ माइनस मतलब -14.5 प्लस 52.7 आएगा, एंड दिस विल बिकम 38.2। तो पीआर देखो किसमें, पीएल डीबीएम में, पीटी भी डीबीएम में था, तो पीआर भी किसमें आएगा? डीबीएम में। 38.2 डीबीएम। लास्ट अपने को सॉल्व करना है, दैट इज द लिंक मार्जिन। सो व्हाट इज द लिंक मार्जिन? इट इज डिनोटेड बाय एम। तो हमने एस्टिमेटेड दिखा था, लिंक मार्जिन सेफ्टी मार्जिन एस्टिमेटेड दिखा था। अभी कितना देखो, दैट इज रिसीवर पावर, रिसीवर पावर मतलब पीआर minus receiver sensitivity. What was the sensitivity? It is RS. So how much power that we have received? That is 38.2 minus what was the receiver sensitivity? It is a -54. This one is -54. Minus minus plus होगा. This is 38.2 plus 54, and which is equal to 92.2 D. ऐसे जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर कितना? इतना सब किया तो आपको 10 मार्क मिलेगा। इतना लेंगे सब। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 का थ्योरेटिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे सब मैथमेटिकल पार्ट खत्म। नेक्स्ट लेक्चर थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ चैप्टर 2। चलो बाय।